حاصل کرنے کو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے روحانی جنگ اسپرچل وارفیئر کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں اور اس کا جو آج کا سرمن ہوگا خداوند کے کلام سے مسیح اور لیشا کی طرح دعا کریں اور لڑیں پریئر اینڈ فائٹ لائک کرائسٹ اینڈ لیشا مسیح اور لیشا کی طرح دعا کریں اور لڑیں اس کے تعلق سے ہم تعلیم لیں گے اور میرے ساتھ خداوند کے کلام سے حوالہ نکالیے دوسرا سلاطین چھٹا باب اور اس کی 12ویں آیت خداوند کے کلام میں سے خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے تب اس کے خادموں میں سے ایک نے کہا نہیں اے میرے مالک اے بادشاہ بلکہ الیشا جو اسرائیل میں نبی ہے تیری ان باتوں کو جو تو اپنی خلوت گاہ میں کہتا ہے شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے اس نے کہا جا کر دیکھو وہ کہاں ہے تاکہ میں اسے پکڑوا منگواؤں اور اسے یہ بتایا گیا کہ وہ دوتھن میں ہے تب اس نے وہاں گھوڑوں اور رتھوں اور ایک بڑی لشکر کو روانہ کیا سو انہوں نے راتوں رات آ کر اس شہر کو گھیر لیا اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر بم گھوڑے اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے سو اس خادم نے جا کر اس سے کہا ہائے اے میرے مالک ہم کیا کریں اس نے جواب دیا خوف نہ کر کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں اور لیشا نے دعا کی اور کہا کہ اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دی اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ لیشا کے گردا گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہوا ہے اور جب وہ اس کی طرف آنے لگے تو لیشا نے خداوند سے دعا کی اور کہا میں تیری منت کرتا ہوں ان لوگوں کو اندھا کر دے سو اس نے جیسا لیشا نے کہا تھا ان کو اندھا کر دیا اور ایک ریفرنس میرے ساتھ خداوند کے کلام سے نکالیے تو خداوند کے کلام سے ریفرنس لوکا 22 باب اور اس کی 39 آیت خداوند کے کلام سے نکالیے پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو اور وہ ان سے بامشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا اور وہ اسے تقویت دیتا تھا پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا جب دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو اسے غم کے مارے سوتے پایا اور ان سے کہا تم سوتے کیوں ہو اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو بات بولے آمین آئیے روح القدس کا ہم زوردار تالیوں کے ساتھ ویلکم کریں گے اور شکریہ بیٹھیں گے سب بیٹھیں گے بڑی خوبصورت باتیں خدا کے کلام میں سے کرنے کو ہوں مسیح اور لیشا کی طرح دعا کریں اور لڑیں تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ اسپرچل فائٹ کے اندر روحانی جنگ کے اندر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے بھائی یہ روحانی ویپن پہن کر ابلیس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے تو جب یہ ویپن یہ ہتھیار میں نے اور آپ نے پہنے ہوں گے تب ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں گے اور جب ابلیس پر ٹیگ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا دفاع بھی کرنا ہے تو پھر دعا کے ذریعے سے آپ ٹیگ کر سکتے ہیں تو میں بتا رہا ہوں کہ اگر بھائی شیطان کے ساتھ جنگ لڑنی ہے میں نے اور آپ نے شیطان کے ساتھ میری اور آپ کی فائٹ ہے تو وہ اس حالت میں ہوگی جب ہم دعا کرنے والے ہوں گے اور میری اور آپ کی زندگی جب دعا کے اندر گزرے گی اور جب ہم دعا کریں گے تو پھر کیا ہوگا ابلیس جو ہے وہ ابلیس کے جلتے تیروں کو بجھا سکیں گے تو یہ دعا جو اس قدر اہم ہتھیار ہے ویپن ہے بھائیو دعا ہی کے ذریعے سے تو آسمان سے کلام نازل ہوتا ہے دعا ہی کے ذریعے سے دعا کرنے والے ہوں گے تبھی ابلیس کے ساتھ جنگ لڑ سکیں گے اور اگر دعا کرنے والے ہوں گے تو بھائی آپ رویا اور خواب دیکھ سکیں گے اور یہ خدا کا کلام جو ہے خدا کا زندہ کلام یہ جو ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے بھائیو یہ رویا اور خوابوں کے ذریعے سے نبیوں کے ذریعے سے نازل ہوا ہے میں نے بتایا جو شخص خواب دیکھے گا اور رویا دیکھے گا وہ نبی کہلاتا ہے نبی کے اندر یہ صرف نبی ہی خواب اور رویا دیکھتا ہے اور اگر کوئی دنیا کے اندر خواب اور رویا دیکھتا ہے اس کا مطلب وہ نبی ہے پروفٹ ہے اس کے پاس یہ نعمت اس کے پاس یہ برکت ہے کہ وہ کیا کرے خواب اور رویا کو دیکھے اور آج دنیا کے اندر
भाइयों मैंने बताया कि उस दौर के अंदर, पुराने नामा के अंदर, जब भी खुदा कलाम करता था रोया के जरिए से। जब कोई दुआ करने वाला शख्स होता था तो फिर रोया उस पर नाज़िल होती, या ख्वाब के जरिए से खुदा उसका आंसर का जवाब देता। मगर आज खुदा का रूह हमें सिखाता है। आज ख्वाबों की जरूरत नहीं है, मगर ख्वाब जो है ये अगर कोई बहुत बड़ा खादम, मैच्योर खादम दुनिया के अंदर होगा तो खुदा उसकी डायरेक्शन सही करने के लिए उसे ख्वाब या रोया दिखा सकता है ताकि उसकी राह सीधी करे। जैसे लिखा पौलुस रसूल को, क्योंकि उसकी राह वो दूसरी साइड पर जाने लगा था, खुदा के रूह ने फिर उसे गाइड किया, उससे रोया देखी तो फिर उसकी डायरेक्शन को सीधा किया गया। मगर आज खुदा के कलाम लिखा है, खुदा के कलाम को बढ़ाना चढ़ाना नहीं है। ख्वाब तो आ सकते हैं, मेरी और आपकी जिंदगी में ख्वाब आते हैं, उनको बुरे ख्वाब है, उनको डांटिए। तो हमारी जो जिंदगी है वो ख्वाबों की वजह से नहीं चलती कि ख्वाब होंगे, तो हमारी जिंदगी जो है वो कहां किस पे चलती है? खुदा के कलाम के ऊपर। हालेलुया। मेरा और आपका फोकस खुदा के कलाम पर हो, यानी कि ख्वाबों पर हो, कि हम ख्वाबों को देखेंगे तो फिर अपनी हमारी लाइफ चलेगी। ख्वाब हमें ये गाइड करते हैं। भाइयों मैंने बताया कि ख्वाब अब जो है ये खुदा का रूह हमें सिखाता है, वो हमें समझा देता है, बता देता है, गहरे भेद हम पर खोल देता है। तो अब ख्वाबों की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या खुदा के कलाम को बढ़ाना चढ़ाना नहीं। अगर कोई ख्वाब देख कर कहे कि मेरी लाइफ ऐसे हो जाएगी, इसका मतलब उसने खुदा के कलाम को बढ़ा दिया। तो लिखा है खुदा के कलाम में, मुकाशवा की किताब उसके आखिरी बाब के अंदर आखिरी आयतों के अंदर लिखा है कि जो इस किताब को यहाँ बढ़ाएगा, इसको घटाएगा, तो उस पर सारी आफतें जो इसमें लिखी है वो आएंगी। इसका मतलब ख्वाब आ सकते हैं, बुरे ख्वाबों को आप डांटिए। मैंने बताया कि ख्वाब अगर एक ईमानदार को, बिलीवर को आ गया तो वो बहुत मैच्योर खादम होगा, उससे ख्वाब आएगा। और ख्वाब तो वैसे आ सकते हैं, तो इससे घबराना नहीं है कि पता नहीं क्या हो गया, क्या मुसीबत आ गई मुझ पर। तो कहने का मकसद है ख्वाब आ सकते हैं आपकी जिंदगी में, मगर हमारा जो भरोसा ख्वाबों पर ही ना हो, भाई खुदा के कलाम पर हो, जिंदा कलाम पर। हमारे जो खुदा का कलाम है वो हमें डायरेक्शन देता है, वो हमें सिखाता है। इसलिए क्या खुदा का कलाम सुनने से क्या पैदा होता है? ईमान पैदा होता है। आमीन। या जाहिर है कि जब खुदा का कलाम सुनेंगे तो ईमान पैदा होगा। तो कहने का मकसद है नबी जो होता है वो ख्वाब और रोया देखता है। नबी क्या करता है? ख्वाब और रोया देखता है, और ख्वाब और रोया के जरिए से वो आगे क्या करता है? खुदा के कलाम को बयान करता है। और मैंने बताया पूरी बाइबल जो ख्वाब और रोया के जरिए नबियों के जरिए से पहुंची, खुदा के लोगों के जरिए से पहुंची, मगर ये मुकम्मल तौर पर अब हमारे पास है। इसमें अब हम घटा बढ़ा नहीं सकते कि इसमें और बढ़ाते चले जाए, घटाते चले, क्योंकि ये पूरा मुकम्मल खुदा के रूह ने इल्हाम के जरिए से लिखा गया। तो कहने का मकसद है मेरी और आपकी जिंदगी ख्वाबों पर ना हो, मगर पुराने हनामा के अंदर लोगों ने ख्वाब देखे, रोया भी देखी। नए हनामा के अंदर भी रोया दिखाई गई, मगर उसकी डायरेक्शन को करेक्ट करने के लिए। तो कहने का मकसद है आज जो खुदावंद के कलाम में से मैं सब्जेक्ट बयान कर रहा हूं, मसीह और लीशा की तरह दुआ करेंगे। दुआ करते हुए हमने लड़ना है। मेरी और आपकी जिंदगी दुआ गो हो, हम दुआ करने वाले हो, प्रेयर वॉरियर हो। दुआ करेंगे तो फिर जंग लड़ सकते हैं, इब्लीस की तमाम कुव्वतों पर गालिब आ सकते हैं। इब्लीस की तमाम जो वो अटैक करता है, जो जलते तीर छोड़ता है, जब दुआ करेंगे तो वो बुझते चले जाएंगे। तो मेरी और आपकी जिंदगी में दुआ हो, मैं और आप दुआ करने वाले हो। और खुदावंद के कलाम के अंदर जो अलीशा की लाइफ के ताल्लुक से बताने लगा हूं, अलीशा जो था वो एलिया का शागिर्द था। और खुदावंद के कलाम में लिखा है एलिया वो शख्स था जो क्या करता था? खुदावंद के कलाम में लिखा है उसने येजबेल जो थी, मलका थी, लिखा बहुत जादूगरी करने वाली थी, उसके साथ मुकाबला किया। और फिर लिखा है कि खुदावंद के कलाम में लिखा है उसने आग आसमान से मंगवाई, आसमानों को एलिया बंद करने वाला नबी था, इस कदर नबी था वो खुदा का। लिखा है मुर्दों को भी उसने जिंदा किया। तो एलिया जो था वो प्रॉफिट था, और उसकी जिंदगी में भी ख्वाब रोया आती थी। वो दुआ करने वाले होते थे, जो नबी होते थे वो दुआ में रहते थे सारा दिन, और वो भाइयों रात दिन वो दुआ करते रहते थे, तो फिर कलाम नाज़िल होता था। तो लेकिन आज भी मेरी और आपकी जिंदगी में मैं और आप भी दुआ करते हैं तो कलाम नाज़िल होता है। आमीन। हम जब तैयारी करते हैं, हमने ऐसे नहीं कलाम पकड़ के आ जाते, हम रात दिन जो है वो स्टडी करते रहते हैं, कलाम में रहते हैं। ऐसे नहीं आपके पास मुंह उठाकर आ गए और यहाँ पर कलाम सुना रहे हैं। भाइयों दुआ के अंदर ठहरेंगे तो कलाम नाज़िल होगा। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखा है नबी जो था वो दुआ के अंदर ही ठहरता था, वो उसका दिन रात फोकस खुदा के ऊपर होता था, दुआ करता रहता था। और फिर खुदा का कलाम रोया, ख्वाब उस पर नाज़िल होते थे। और खुदावंद के कलाम में लिखा है एलिया जो था, लिखा है उसने अलीशा को अपना शागिर्द होने के लिए चुना। अलीशा को क्या किया? खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि एलिया ने अपनी जो चादर थी, लिखा है उसके ऊपर जो चादर थी, नबी की एक चादर होती थी, शॉल होती थी,
उसने लिखा है अलीशा जो था अपनी खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो क्या कर रहा था। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि अलीशा अपने खेत के अंदर 12 जोड़ी बैल जो था वो जोत रहा था, यानी कि वहां पर उसने 12 जोड़ी बैल जोते हुए थे, यानी खेत के अंदर काम कर रहा था। 12 जोड़ी बैल भाइयों चला रहा था। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है 12 जोड़ी बैल जो थे उसने जब लगाए हुए थे तो लिखा है एलिया ने आकर लिखा अपनी चादर शॉल जो थी उस पर फेंक दी। और जब उस पर फेंक दी, इसका मतलब वो जानते थे लोग कि जब चादर फेंक दी जाती है, नबी की चादर किसी पर फेंकी जाएगी, इसका मतलब है उसको कॉल किया गया है कि तूने नबी की खिदमत करनी है, तूने शागिर्दी करनी है शख्स की। और लिखा है उसने जब एलिया ने चादर ऊपर फेंकी तो लिखा है एलीशा को पता चल गया कि मैं नबी के लिए कॉल कर लिया गया, यानी नबी को मैंने फॉलो करना है। वो एलिया का शागिर्द हो गया। और जो शागिर्द होते हैं वो भाई जो होते हैं उस्ताद को, मास्टर को फॉलो करते हैं, यानी उनको फॉलो करते हुए अपनी लाइफ बसर करते हैं, यानी कि अपनी मर्जियां मनमर्जियां करते फिरे। शागिर्द जो होता है लिखा मास्टर को फॉलो करता है, यानी अपने उस्ताद को फॉलो करता है। और यहां तक लिखा है कि अलीशा जो था लिखा है अपने उस्ताद एलिया के पांव पर पानी डालता था, आप देखिए। और हाँ, उसने जब अपने यानी वहां से खेत छोड़ा तो उसने कहा मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहता हूं, जस्ट उसने इतना कहा। तो जब वो माँ बाप से मिलाया तो फिर लिखा उसने एलिया के पीछे हो लिया और लिखा एलिया का यानी शागिर्द बना। और मैंने बताया कि जैसे एलिया ने बहुत सारे मौजात किए, फिर एलीशा ने भी लिखा बहुत मौजात किए। आमीन। उसने नबी की खिदमत पाई। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है वो भी दुआ करने वाला था, ऐसे ही नहीं, लिखा है दुआ करने वाला ही नबी कहलाता है। और मैं बताया कि दुआ करने वाला नबी कहलाता है। और नबी जो होते हैं वो यानी देखते हैं, उनका काम है देखना, ख्वाब देखना, रोया देखना, खुदा से कलाम लेना। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि अलीशा ने जब एलिया ने अलीशा पर अपनी चादर जो थी अपने उसके ऊपर डाल दी, और लिखा है कि फिर उसने फौरन क्या किया, अपने उस्ताद को फॉलो किया, उसके पीछे हो लिया। और ये जो शॉल थी, ये भाइयों जो शॉल होती थी नबी की, आज भी अगर आप यरूशलेम में जाएं तो वहां पर वो शॉल यूज करते हैं। और वो नबी आज भी बहुत सारे खादिम जो होते हैं वो शॉल को लेकर यरूशलेम से लाते हैं। और वो जो चादर है वो एक धारी चादर होती थी और वो पहन लेते थे। और आज लोग जो है वो कलाम सुनाते हैं, बड़े पास्टर। और बहुत सारे तो लोग जो अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर क्या करते हैं, वो शॉल को लेकर, वो जब शॉल को ले लेते हैं तो क्या करते हैं, वो दुआ भी करते हैं सर पर रखने के लिए। वो ऐसे सर पर रखते हैं और क्या करते हैं, नबी की तरह दुआ करते हैं। तो भाइयों आज हमें सर ढांप कर दुआ नहीं करनी, क्योंकि ये सर हमारा मसीह है। हालेलुया। मसीह को ढांपने की जरूरत नहीं, बल्कि मसीह को जाहिर करना है। आइए इस बात की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मगर दुनिया के अंदर आज लोग शॉल पर तवक्कुल कर रहे हैं, वो शॉल को पहनकर कलाम सुनाते हैं और फिर शॉल ही को क्या करते हैं, पहनकर पर्सनल दुआ करते हैं, मगर सर ढांप कर। उस वक्त नबी सर ढांपते थे। आगो भाइयों, क्राइस्ट हमारा सर है, अब उसे ढांपने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तो उसे जाहिर करने की जरूरत है। हम लिखा हमारे बेनकाब चेहरों से खुदा का बेटा क्राइस्ट जाहिर हो। आमीन। लिहाजा इन चेहरों से तो भाई खुदा का बेटा जाहिर करना है। तो लिहाजा ये शॉल भाई दुनिया के अंदर बड़ी मिनिस्ट्रियां, बड़ी जो है वो गलत तलीमात भी चल रही हैं। लोग क्या करते हैं, इस शॉल को फेंकते हैं, रुमाल फेंक के जाते हैं ताकि लोग शफा पा जाएं। तो भाइयों बाइबल के अंदर ऐसी तालीम नहीं मिलती, मगर यहां से तालीम ली जाती है एलिया और एलीशा की बात लेकर कि एलिया ने एलीशा पर क्या की, चादर फेंकी। बड़े बड़े खादम दुनिया के अंदर फॉल्ट टीचिंग चल रही है, वो अपने कोट उतार कर ऐसे जॉइंट पर फेंकते हैं, लोग शफा पा जाते हैं। यानी ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो भाई डीमंस, इब्लीस की तस्वीरें फिर उस तरीके से वो क्या करती, मूव करती हैं और फिर वो उनकी जिंदगी में काम करती हैं। मौजात होते हैं बड़े बड़े और इब्लीस भी काम कर जाता है। तो आप देखिए कि दुनिया के लोग मौजात पर ही ध्यान देते हैं। और बाइबल के अंदर लिखा है बड़े बड़े लोग वहां पर जब अदालत होगी तो वहां पर कहेंगे हमने तेरे नाम से बदुएं निकाली, हमने तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा कर दिया। मसीह कहेगा मेरी तुमसे कोई वाकियत नहीं है। क्यों कहेगा? क्योंकि भाइयों झूठी तालीम उनकी जिंदगी में होगी, उनके अंदर झूठी तालीम दुनिया के अंदर चल रही है। लोग उन चीजों को फॉलो करते हैं, फॉलो अप करेंगे भाइयों, और लोग इस तरह जो है रूहानियत से कटते चले जाएंगे। इन्हीं चीजों पर उनका फोकस होगा। मगर भाइयों आज का तो हमें मसीह को जाहिर करना है। इन शॉल को लेने की जरूरत नहीं है।
बल्कि भाइयों अब तो हमारे चेहरों से खुदा के नाम को जलाल मिले। लिहाजा लिखा है कि जब एलिया का शागिर्द जो एलीशा हुआ तो लिखा उसने अपने मास्टर को फॉलो किया, और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब वो उनसे जाने लगा था एक जगह पर, लिखा है एलिया ने अपने शागिर्द से कहा, सुने, उसने कहा कि मैं जलजाल को जाता हूं। उसने कहा मैं भी जाऊंगा। एलीशा ने क्या कहा? मैं भी जाऊंगा। उसने कहा तू यहां ठहर जा। उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा। यानी ये भाइयों शागिर्द की लाइफ है। उस्ताद कह रहा है ठहर जा, मैं आगे जरा जलजाल से हुआ हूं। कहता नहीं मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। और आज कोई खादम के साथ जो लीडर होते हैं, जो लीडर यानी खादम के साथ चल रहे होते हैं, अगर कोई वो भाइयों खादम के साथ ही भाइयों ना चल सके, उसे फॉलो ना कर सके, तो वो किस कैसे शागिर्द है। लिहाजा भाइयों कोई अगर हम जाते हैं कहीं पर खिदमत के लिए, तो भाइयों जो शागिर्द होते हैं, जो असिस्टेंट्स होते हैं, वो हमसे कहें कि हमने भी जाना है। मगर आजकल तो भाइयों हम कहते भी तो वो नहीं जाते, वो बहानेबाजी, वो कहते चंगा ही सानू नहीं किया। यानी आज की लाइफ, हमारे चर्च की बात नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये सिस्टम है। यानी अपने मास्टर को फॉलो नहीं किया जाता, वो भाइयों अगली बातें ही करते हैं। भाई हम ही ऐसा क्यों करें? मास्टर कुछ कहे तो आगे से वो कहेंगे भाई हम नहीं करेंगे। तो वो कैसे शागिर्द है? वो कैसे भाइयों कैसे बरकत मिलेगी? मैंने बताया शागिर्द का काम होता है अपने मास्टर को फॉलो करें। मैं और आप खुदावंद की खिदमत करने वाले हैं। लिहाजा भाइयों दुनिया के अंदर ये देखो, ये शागिर्द तो मसीह के हमने बनाने, अपने तो नहीं बनाने, मगर दुनिया के अंदर ये सिस्टम है। जैसे हर खुदावंद के कलाम में लिखा है मूसा के साथ यशुआ कालेब थे, देखिए ये सारा। फिर लिखा है एलिया के साथ एलीशा था, और फिर खुदावंद के कलाम लिखा है यीशु मसीह के साथ 12 शागिर्द। ये शागिर्द है ना। फिर लिखा है पतरस के साथ तीमुथियुस था, इसी तरह पौलुस के साथ सलास थे। ये इस तरह टीम के साथ शागिर्दियत के अंदर, और इस तरह खुदा का कलाम आगे फैलता चला जाता है। शागिर्द का काम होता है मास्टर को फॉलो करना। आमीन। और फिर लिखा है जो एलीशा था, लिखा अपने उस्ताद को वो फॉलो करता था, और उसने कहा कि यहां रुक जा, मैं जरा आगे से हूं। उसने कहा मैं क्या करूंगा, तेरे साथ चलूंगा, मैं भी चलूंगा। उसने जिद की। लिखा उस्ताद जो था एलिया उसे ले गया आगे। उसने मुख्तलिफ प्रॉफिट को, जहां लिखे अंबिया ज़ादों को कलाम सुनाना था, यानी उसने आसमानों पर चला जाना था। और खुदावंद के कलाम में लिखा है एलिया ने आसमानों पर उठा लिया जाना था, जिंदा उठा लिया जाना था। बाइबल के अंदर 2 शख्स ही मिलते हैं, एक तो लिखा हनूक, लिखा है आसमान पर जिंदा उठा लिया गया, और दूसरा एलिया आसमान पर उठाया गया। और खुदावंद के कलाम लिखा है उसने उस रात उठा लिया जाना था, और वो अपने शागिर्द को कहता था रुक जा यहाँ पर, मैं आगे से हूं। वो कहता नहीं, मुझे तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ये भाइयों शागिर्द जो होता है वो अपने मास्टर को फॉलो करता है, छोड़ता नहीं है। ये नहीं होता कि मास्टर कहीं और हो, शागिर्द कहीं और हो, पता ही ना हो मास्टर को, उस्ताद को पता ही ना शागिर्द क्या कर रहे हैं। क्या रहे हैं? वो फॉलो करने वाले हैं। वो भाई मतवातर प्रॉपर खुदा के हुजूरी में खुदा के खादम के साथ मिलकर काम करने वाले थे, अपने उस्ताद को फॉलो करते हैं। मैंने बताया कि एलीशा भाइयों कहता मुझे तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। और खुदा के कलाम में वो जहां जहां पर गया उसने फिर सरमन दिए एलिया ने। और अंबिया ज़्यादा कहते छोटे नबी, जहां पर वो ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो नबी बनने के लिए। तो बेशुमार ऐसी जगहों पर वो पॉइंट थे जहां पर प्रॉफिट थे, अंबिया ज़्यादा थे। फिर उन्होंने एलिया ने वहां पर, एलीशा ने वहां पर जाकर खुदा की इमदाद की। और फिर लिखा है कि जब वो आसमान पर उठाने जाने को था तो उसने कहा तू क्या चाहता है? एलिया ने अपने शागिर्द एलीशा से कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा तेरी रूह का दूना मुझे चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, देखिए उसने उस्ताद को क्या कहा, उसने कहा तूने मुश्किल सवाल कर दिया। एलिया ने कहा तू क्या चाहता है, तू मेरे जान नहीं छोड़ रहा। उन्हें पता चल गया कि मेरे उस्ताद ने आज चले जाना है, क्योंकि वो कलाम सुना रहा था, प्रीचिंग सुना रहा था हालात के मुताबिक। उस शागिर्द को पता चल गया इन्हें लगता जा रहे हैं आसमाना दे उठ जाना है। उसने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मुझे तेरी जान की सौगंध। उसने कहा तू क्या चाहता है बोल। फिर उसने कहा तेरी रूह का दूना मुझे चाहिए। हालेलुया। उसने लिखा है एकदम, उसने कहा हाँ ठीक है सवाल मुश्किल है, लेकिन एक काम है, अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देख ले तो फिर तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। यानी देख ले, यानी ये रोया देख ले, तेरे अंदर ये है, तो अभी अंबिया ज्यादा है, अभी नया नया है। अगर तेरे अंदर ये इतना पैशन है, रोया देख ले, यानी तू सी, तू देख रहे, यानी देखने वाला शख्स नबी होता है ना भाई। तू अगर नबी के लिए कॉल तो किया खुदा ने तुझे, तो फिर अगर तेरे अंदर ये इतना पैशन है तो फिर तू मुझे अगर ये जुदा होते देख ले, यानी ये विजन देख ले, ये रोया देख ले आसमानों पर जाते हुए, तो फिर तेरे लिए ऐसा हो जाएगा। देखिए वो एलीशा भी भाइयों ऐसे नहीं था, दुआ करने वाला था, ऐसे नहीं उसने विजन ये देखा। फिर देखा एकदम जब जुदा हुआ उसने फौरन देख लिया, आपने
मास्टर को, और लिखा उसने जो चादर थी, उसकी जो शॉल थी, लिखा उस पर गिरी। इसका मतलब दूसरी बार गिरी। एक दफा तो उसने जब खिदमत के लिए कॉल की, एक दफा पहले वहां पर गिर, उस पर फेंकी, और अब लिखा आसमान पर वो जब ऐसे गया और दूसरी दफा शॉल गिरी। इसका मतलब डबल पोर्शन उसे मिला, ये डबल मिनिस्ट्री मिल गई। एलिया ने जितने मोर्चे की उससे डबल उसने फिर एलीशा ने की। आई इस बात के लिए जोर दिया, हालेलुया हालेलुया। जैसा जो शिगिर्द मास्टर को फॉलो करते हैं, फिर भाइयों वो जो है वो डबल पोर्शन पाते हैं। आमीन। यानी बरतों को हासिल करते हैं। जितना लेवल होगा, डबल पोर्शन का ये मतलब नहीं कि भाई उस्ताद से बढ़कर काम करेगा, नो नो, उस्ताद से भाई शिगिर्द बढ़कर नहीं हो सकता, ये याद रखिए, क्योंकि उस्ताद मसीह है, मसीह से हम बढ़कर नहीं सकते। आमीन। लेकिन यह है कि हमें फौरन जो है फॉलो करते चले जाना, सीखते चले जाना, और खुदा के कलाम की मनादी करते जाना, आगे शिगिर्द बनाते चले जाना है मसीह के, ताकि वो आगे बढ़ते चले जाए। और मैंने बताया जो उस्ताद होता था, शिगिर्द होता था, वो भाई दुआ करने वाले नबी, फिर एलीशा जो था वो नबी कहलाया। और नबी जो ख्वाब रोया देखने वाला होता है, मैंने बताया कि वो भी ख्वाब रोया देखने वाला था। और लिखा है सबसे पहले उसने लिखा है कि एक जगह पर दुआ कर रहे थे और एलीशा का भी शिगिर्द वहां पर था, और लिखा है कि एलीशा का शिगिर्द फौरन उठा, उसने देखा कि बाहर जो है बहुत बड़ी आर्मी घेरे हुए है हमें, और वो भागा भागा आया, डर गया, कहता हाय मेरे मालिक, हमें तो दुश्मन ने घेरा हुआ है। अभी एलीशा की बात बता रहा हूं। एलिया आसमान पर उठा लिया गया, तो वो दुआ कर रहा था। नबी का काम होता है दुआ करना, वो भाई अंदर बैठ के दुआ कर रहे हैं। शिगिर्द भी कुछ ऐसे होते हैं भाई, वो सैर सपाटे करते हैं, उस्ताद दुआ कर रहे होते हैं, हालांकि उसे दुआ के अंदर बैठना चाहिए। शिगिर्द का काम है फॉलो करना। वो भाई सैर सपाटे कर गया बाहर, और जब बाहर देखा तो दुश्मन जो था वो उस लिखा कि उस एरिया को घेरे हुए था, और वो घबरा गया। उस्ताद को फौरन दुआ के अंदर कहा, क्या उस्ताद हम मारे जाएंगे, आर्मी ने हमें घेर लिया है। तो भैया वो तो ख्वाब रोया देखने वाला है एलीशा, उसे नहीं पता कि दुश्मन ने घेरा, पता है उसे, नबियों को पता होता है भाई, नबियों को ये भाई उसके वो तो देखने वाले होते हैं ना, रोया देखने वाले होते हैं, ख्वाब देखने वाले होते हैं, जान लेते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसने कहा हमारे जो है उनसे ज्यादा है। हालेलुया। वो कहता है जितनी आर्मी उनकी है हमारे उनसे बढ़कर है, उनसे ज्यादा है, तू घबराना। तो वो घबरा गया, डर गया। तो फिर लिखा है कि उसने कहा आंखें बंद कर। एलीशा ने कहा, उसकी आंखें बंद की। एलिया ने दुआ की। एलिया ने क्या की? उसने कहा खुदा मेरे शिगिर्द की आंखें खोल दे ताकि ये तेरी जलाल को देखे। लिखा उसने, उसकी आंखें खुल गई। उसने भी फिर रोया देखी। उसने भी ये देखा कि जो आर्मी दुश्मन की घेरे हुए है, खुदावंद के कलाम में लिखा है उनके इर्द गिर्द उनको भी घेरने वाली एक आर्मी आई हुई है, और वो आतिशी रथ थे, आतिशी घोड़े थे। उनके तो भैया आम जिस्मानी थे, मगर उनके तो भैया जो आसमान से आए हुए हैं उनकी मदद को, वो भैया आग के बने हुए थे। हालेलुया। आतिशी रथ, आतिशी घोड़े वहां पर उतरे हुए हैं। उसका मतलब है तू घबराना, वो तू तसल्ली में आ गया। उसने कहा हमारे तो उनसे बढ़कर है। आमीन। दुनिया के भाइयों घोड़े, दुनिया के जो भाइयों हो सकते हैं हथियार, वेपन आपके खिलाफ हो, मगर हमारे जो है उनसे बढ़कर है। आमीन। हमारे उनसे जोरावर है। हमारे जो है हमारी हेल्प को जो पहुंचते हैं फरिश्ते, वो उनसे जोरावर है। लेकिन ये दुआ करने वाले होंगे भाइयों। इब्लीस के साथ लड़ना है तो दुआ करने वाले होंगे। दुश्मन को हराना है तो दुआ करने वाले होंगे। दुआया वॉरियर बनेंगे, जंगजू बनेंगे। दुआ के अंदर भाइयों लड़ाई हमने करनी है, दुआ करने वाले होंगे तो फिर दुश्मन का मुकाबला कर सकेंगे। लिहाजा खुदावंद के कलाम लिखा है, एलीशा ने कहा हमारे जो है उनसे ज्यादा है। आमीन। ये तो थोड़े से हैं। और खुदा ने कहा ऐ खुदा, एलीशा ने दुआ की, उससे कहा ऐ खुदा दुश्मन के तमाम लोगों की आर्मी जो है वो अंधी हो जाए। अब देखिए हजारों के तादाद में लोग थे, एक दो नहीं, हजारों की कस्सा बंदे हो गए। आइए इस बात के लिए जोर देते नहीं। हालेलुया हालेलुया। लिखा सब के सब क्या हो गए? अंधे हो गए। उनकी आंखें आप देखिए, हजारों की तादाद में आर्मी उनकी, दुश्मन की आर्मी, वो वेपन के साथ आए हैं। आए इसलिए थे कि वो जो आरामी बादशाह था वो कहता कि हम जो भी इसराइल के खिलाफ प्लान बनाते हैं उनको पता चल जाता है। ये कोई हमारी फौज के अंदर ऐसा है जो उनको चीजें बता देती है। एक बंदे ने कहा नहीं नहीं बादशाह सलामत है, ऐसी बात नहीं है बादशाह। मसला ये है कि उनके जगह पर, उनके यरूशलेम के अंदर एक खुदा का बंदा है, बर्दर दुआ है, एलीशा। वो जो तू खलतगाह में भी कहता है, पोशीदगी में जो प्लान बनाता है, उसे पता चल जाता है। हालेलुया। वो पहले ही जान जाता है। उसने कहा उसे पकड़ के लाओ। उसने आर्मी छोड़ी
और लिखा है इधर अलीशा ने दुआ की और सब के सब वो अंधे हो गए, हजारों की तादाद में अंधे हो गए। अलीशा अकेले ने क्या किया, लिखा है उनको पकड़कर दोबारा सामरिया में ले गया उनको, और उनसे कहा कि किसको ढूंढते हो। वो आंखें अंधे हो गए। उन्होंने कहा हम उस मर्दे यानी दुआ करने वाले अलीशा को ढूंढते हैं, खादम को ढूंढते हैं। उन्होंने कहा चल आओ तो मैं दहामा, उन सबको अंधा कर दिया और सबको लेकर लिखा सामिया में ले जाकर उसे दुआ किया, खुदा अब इनकी आंखें खोल दे। और लिखा उनकी आंखें खोली, उनसे कहा मैं ही हूं। और वो डर गए। वो कहते भाई इसराइल का तो एक ही बंदा हजारों को अंधा कर देता है। वो खौफजदा हो गए। हालेलुया हालेलुया। लिखा है जब तक लिखा है वो अलीशा जिंदा रहा, लिखा है अरामी कौम वहां पर हमला दोबारा नहीं यरूशलेम में करने आई। वो डर गए। उनकी जिंदगियों पे, उनके बादशाह की जिंदगी में, रियाया में, आर्मी में खौफ छाया रहा। कहते हो भाई यरूशलेम की तरफ अटैक नहीं करना, उनका तो एक बंदा ही नहीं मान भाई, तो दूसरे क्या होंगे, एक बंदा ही सबको अंधा कर देता। हालेलुया। तो आप देखिए कि अलीशा जब तक जिंदा था, दुआ करने वाला था, वो दुश्मन की चालों को समझ जाता था। इस तरह मैं और आप जब दुआ करने वाले होंगे तो इब्लीस के जलते तीरों को बुझा सकेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। और एक और बात बताऊंगा, खुदावंद के कलाम लिखा है अलीशा जो था, लिखा है कि मरने के करीब था, उसे लिखा है एक रोग लगा, तो लिखा मरने के करीब था। तो दुश्मन को पता चल गया, दुश्मन ने उन्होंने एलिया भाई बीमार पड़ा है, मरने के करीब है, अब अटैक करते हैं। तो शाह इसराइल जो था, इसराइल का बादशाह, वो भागा भागा अलीशा के पास है। उसने कहा अलीशा जब तक सही था, अब ये मरने वाला है, तो किसी ने हमारी तरफ जरूरत नहीं की कि हमारे साथ मुकाबला करे। अब वो भी घबरा गया। उसने कहा अटैक ना कर दे दुश्मन। फौरन अलीशा के पास आया। उसने कहा कि वो आरामी हम पर अटैक कर सकते हैं, तू बता हम क्या करें। उसने कहा तू घबरा ना, अपना तीर तरकश में डाल और मेरे हाथ पे हाथ रख, खिड़की खोल दे उस तरफ जहां पे आरामी रहते हैं। उसने कहा तरकश में तीर डाला और उसने क्या किया, तीर कमान के अंदर। उसने कहा मेरे हाथों पे हाथ रख बादशाह। उसने जब पहला छोड़ा तो उसने छोड़ दिया। उसने कहा ये मैंने छोड़ा है, अब तू तीर छोड़ खिड़की की तरफ। उसने बादशाह ने क्या किया, पहला छोड़ा, तेज जोर के साथ छोड़ा, दूसरा जरा स्लो छोड़ा, तीसरा भी स्लो छोड़ा, और अब दोबारा उसका हाथ तरकश के अंदर नहीं गया। तो एलीशा जो था वो नाराज हो गया, गुस्से में आ गया। उसने कहा शाह इसराइल तूने सिर्फ 3 तीर चलाए, तुझे तीर पे तीर चलाना चाहिए था दुश्मन। अब तुझे 3 दफा ही मौका मिलेगा, उन शहरों को तुम जीत सकोगे। हाँ शाह इसराइल, अगर तू 5 दफा तीर चलाता, 6 दफा तीर पे तीर चलाता, तीर पे तीर चलाता, तीर पे तीर चलाता, तो तू दुश्मन को ऐसे फना करता, उसे तबाह व बर्बाद कर देता। आमीन। तू तीर चला, तू थक गया भाई, 3 तीर चलाकर तू थक गया भाई। इस तरह मेरी और आपकी जिंदगी में भाई अलीशा ये समझा रहा है कि अब खुदा हमारे साथ है, तो तू भाइयों खुदा पर भरोसा कर ना। अब खुदा पर भरोसा कर, तीर पे तीर चला, तू तीर भी नहीं चला सकता। उसने 2-3 तीर चलाए और वहां पर ही दोबारा नहीं कोशिश की। सिर्फ मेरी और आपकी जिंदगी में भाइयों इब्लीस का मुकाबला करना, तो मुझे और आपको तीर पे तीर चलाना है। मैं और आप तीर पे तीर चलाएंगे, दुआ पे दुआ करते चले जाएंगे और फिर भैया इब्लीस का मुकाबला करेंगे। इसलिए तो लिखा है खुदा के ताबे हो, जो इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो भाई तीर पे तीर चलाना है, दुआ करने वाले हो। इस तरह मैं मुख्तसर करूंगा खुदावंद के कलाम में से। लिखा है कि क्राइस्ट खुदा का बेटा, लिखा है कि देखिए अलीशा जैसे फरिश्तों को मुकाता था, लिखा है खुदावंद यीशु मसीह, लिखा है गसमी बाग के अंदर, लिखा है दुआ कर रहा है। और लिखा है कि खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि वो भी भाइयों फरिश्तों को मुका सकता है यीशु मसीह, 12 तुमन फरिश्ते। और लिखा है कि वहां पर उसका पसीना क्राइस्ट का, लिखा है खून बनकर, लिखा है वो भाइयों उसकी बूंदे टपक रहा है। लिखा है यीशु मसीह दिल सोजी के साथ दुआ करने लगा। अब यीशु मसीह भी भाइयों लिखा है कि सख्त जान कनी की हालत में दुआ करने लगा। और लिखा है उसका पसीना खून की बूंदे होकर टपकता था। और लिखा है यहां पर सुनिए, लिखा है कि लीशा ने तो भाइयों, लीशा तो पकड़ा नहीं गया, मगर यहां पर क्राइस्ट पकड़ा गया, क्राइस्ट पकड़ा गया। आप सोचिए कि क्राइस्ट के साथ फरिश्ते नहीं थे भाई। लीशा अगर फरिश्तों को मुगा सकता है, रथों को, लश्करों को, तो क्या क्राइस्ट नहीं मुगा सकता था? मुगा सकता है। यीशु मसीह ने कहा जब आदमी पकड़ने के लिए, यीशु मसीह ने कहा पत्थर से कि मैं 12 तुमन फरिश्तों को मुगा सकता हूं। हालेलुया। मेरी मदद को पहुंच सकते हैं। क्यों नहीं मुगाए? क्योंकि भाइयों गुनाह की जिम्मेदारी गसमी बाग के अंदर क्राइस्ट ने ले ली गुनाह।
पूरी दुनिया का गुनाह क्राइस्ट के ऊपर था। अब यीशु मसीह खुदावंद के कलाम लिखा है, ये प्याला मुझसे टल जाए, यानी ये घड़ी मुझसे टल जाए, मेरी मौत यहां ना हो। यानी उस वक्त भाइयों इब्लीस की तमाम कुव्वतें जो थी क्राइस्ट के ऊपर आ चुकी थी, यानी उसको मंडरा रही थी। इब्लीस जैसे लिखा फारस की हुकूमत के ऊपर लिखा है इब्लीस के मोकल छाए हुए थे। अब देखिए उसके चीफ रूलर छाए हुए थे। इसी तरह लिखा है क्राइस्ट जब गत्समनी बाग के अंदर जानकारी की हालत में दुआ कर रहा है, तो लिखा है ये आसमानों के अंदर उस जगह पर इब्लीस की कुव्वतें वहां पर आई हुई हैं और वो मसीह को उसी वक्त मार देने चाहती थी, उसी लम्हा। क्योंकि यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के गुनाह अपने ऊपर उठाए हुए, ऐसे नहीं पसीना जो खून की बूंदें टपक रहा है। तो क्राइस्ट ने कहा ये प्याला जो है, प्याला का मतलब जजमेंट, अदालत, यानी ये प्याला, ये वक्त जो, ये घड़ी टल जाए। अब देखिए ये क्राइस्ट की दुआ, मसीह ने भागकर शागिर्दों के पास गया, मेरी दुआ वो मिलकर दुआ करें। शागिर्द क्या हुए? नहीं आए। फिर जाकर दुआ की, फिर जा गया शागिर्दों को कहा मेरे साथ मिलकर दुआ करो। अब देखिए इस कदर फरिश्ते, डीमन, शैतानी कुत्ते, बदरूहें, हर किस्म का गुनाह तो क्राइस्ट पर था। तो बदरूहें भाइयों उसे मार देना चाहती थी, डेविल उसी वक्त मार देना चाहता था कि ये स्लीप तक ना जाए, मगर यीशु मसीह दुआ करता रहा। आमीन। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है, सुनिए, कि बाशिरत के दिनों लिखा मसीह ने जार जार रोकर लिखा दुआ उठाई है, और लिखा खुदा तरसी के बाइस उसकी सुनी गई। खुदा तरसी के बाइस, इसका मतलब है कि दुआ अगर करते रहेंगे, दुआ जारी रहेगी, तो फिर भाइयों इब्लीस क्या होगा? वो भाग जाएगा। आमीन। इसलिए तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहता है मेरे साथ मिलकर दुआ करो, बार बार आता दुआ करो। अगर दुआ वो साथ मिलकर करते तो ये घड़ी भाई आसानी से टल जाती, मगर शागिर्द नहीं आए। मैंने बताया शागिर्द उस्ताद को फॉलो करते हैं। आज भी दुनिया के अंदर शागिर्द जो होते हैं वो शागिर्द को, उस्ताद को फॉलो नहीं करते। उस वक्त भी लिखा क्राइस्ट के जो शागिर्द थे, पता यूकू यूहन्ना 12 शागिर्द जो थे, सब के सब लिखा सोए हुए थे, परेशानी उनको लिखा है वो भाइयों परेशानी के अंदर थे। और खुदावंद के कलाम में लिखा है उनको परेशानी ये थी कि मसीह ने बता दिया कि आज मैं क्या होऊंगा, मुझे पकड़ लेंगे। जब बता दिया कि मैं पकड़ा जाऊंगा, सब परेशान हो गए, पता नहीं आज की हो जाएगा। सब लिखा है दुख के मारे सोए हुए हैं, दुआ भी नहीं कर रहे। क्या यीशु मसीह ने उनको छड़ियां मारी, तलवार मारे, सर काटे? भाई वो यीशु मसीह तो कहता है मेरे साथ मिलकर दुआ करो, नहीं कहना, अब ये नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब उस्ताद ने तो कहना ही होता है ना, शागिर्द फॉलो करे या ना करे। अगर वो कर लेते तो भाइयों जो है वो घड़ी जो है जल्दी जरा कवर हो जानी थी। लिखा है कि मसीह ने दुआ जारी रखी, बार बार दुआ करता रहा। और लिखा है क्या हुआ? लिखा है एक फरिश्ता आकर मसीह को तकवीयत देने लगा। आमीन। यानी जब लिखा है गुनाह ऊपर थे तो फिर इब्लीस की फोर्सेस भाई घेर लेती हैं। इस तरह मेरी और आपकी जिंदगी में जब नापाकी होगी, गुनाह होगी, तो फिर इब्लीस की फोर्सेस आएंगी और हम पर हमला करेंगी, हमें हलाक कर देंगी, मुश्किलात के अंदर डालेंगी। मगर दुआ जब जारी रहेगी, इसका मतलब फिर पाक फरिश्ते आ जाएंगे। आमीन। लिखा क्राइस्ट ने लिखा बार बार दुआ जब जारी रखी, दुआ कंटिन्यू की, तो लिखा है एक फरिश्ता आकर मसीह को तकवीयत देने लगा। मसीह को क्या करने लगा? तकवीयत। इसका मतलब ये नहीं कि मसीह को आकर पानी पिलाने लगा, नो नो नो। इसका मतलब है कि अब वो जो इब्लीस की कुव्वतें हैं वो पीछे हो गई हैं और पाक फरिश्ते उसके पास आ गए हैं। यानी जब गुनाह था तो पाक फरिश्ते भी भाई कुछ नहीं कर सकते थे, मसीह की हेल्प नहीं कर सकते थे, क्योंकि मसीह ने अपने ऊपर गुनाह लिया है दुनिया का। फरिश्ते ऐसे हाथ बांध कर, उनकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नापाकी के अंदर फरिश्ते नहीं आते। नापाक लोग होंगे नहीं वहां पर आएंगे जहां पर नापाकी होगी। फरिश्ते सामने देख रहे हैं मगर उनकी जरूरत नहीं है। मसीह यीशु 12 तुमन को बुला सकता है आसमानों से, मगर क्योंकि गुनाह ऊपर है नहीं मुगवा रहा भाई, नहीं मुगा सकता, क्योंकि उसने गुनाह उठाना था। और लिखा है जो मुकर्रर फरिश्ता, मिकाएल फरिश्ता, जो लिखा लश्करों का सरदार, वो भी लिखा यरूशलेम के ऊपर मंडलाता है, मगर वो भी मसीह के उस लम्हे के अंदर कुछ नहीं कर सका। देखिए हालांकि वो तो भाई फोर्सेस है, इब्लीस की फोर्सेस चढ़ी हैं, मगर लिखा मसीह मुसलसल दुआ कर रहा है। शागिर्दों के पास आता, आओ मिलकर मेरे साथ दुआ करो। और लिखा है ये झड़ी पर जो मसीह ने कहा हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, यानी ये घड़ी टल जाए, मैं यहां ना मरूं, मैं क्रॉस के ऊपर जाकर मरना चाहता हूं। आमीन। इसलिए तो क्रॉस के ऊपर यीशु मसीह का तमाम हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है कि उसकी लिखा दुआ करने से वो घड़ी टल गई, और घड़ी टलने के बाद लिखा है कि एक फरिश्ता आकर उसे तकवीयत देता। यानी अब वो फरिश्ते जो पीछे हुए हैं, अब वो फरिश्ते, क्योंकि इसका मतलब दुआ जारी रहेगी, इसका मतलब फिर फरिश्ते आकर हमारी मदद करते हैं। और फरिश्ते आगे और नापाक फरिश्ते पीछे, और फिर पाक फरिश्ते उसके पास आ गए। आमीन।
जैसे खुदावंद के कलाम लिखा है कि जब रोजा रखा हुआ था यीशु मसीह ने, तो वहां पर भी इब्लीस ने आजमाइश की, और फिर लिखा वहां पर भी फरिश्तों ने आकर उसकी खिदमत शुरू कर दी। आमीन। दुआ जारी रहेगी तो फिर भाइयों फिर ये फरिश्ते नापाक भाग जाते हैं और पाक फरिश्ते आकर हमारी मदद करते हैं। भाइयों जैसे एलीशा ने लश्कर बुलाए, इस तरह यीशु मसीह भी भाइयों वो तो भाइयों पूरे फरिश्तों को मंगवा सकता है। सारे फरिश्ते उसके ताबे हैं, उसके ऑर्डर को अबे करते हैं, वो जो कहे, मगर वो उस दिन नहीं मंगवाए क्योंकि दुनिया का गुनाह उठाना था। और लिखा जब उसने दुआ की तो फिर लिखा है पाक फरिश्ते फिर उसके आकर उसे तकवीत देने लगे। लिहाजा खुदावंद के कलाम में जो मैं बयान कर रहा हूं भाइयों, एलीशा की तरह और मसीह की तरह मैंने और आपने लड़ना है इब्लीस के साथ। वो दुआ के जरिए से लड़ेंगे तो इब्लीस भाग जाएगा। आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा खुदा के ताबे हो जो इब्लीस का मुकाबला कर वो तुमसे भाग जाएगा। आइए अपने सर को झुका के बंद करें, आइए सब खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए, अपने हाथों को आसमान